Hi, good afternoon, everybody. Welcome to the third episode of Sip and Share. You know, we have already, this is our third episode, and I welcome Sameer, Vishal, and Nutan. And मेरे को तो सब जानते हैं. This is my third episode. I'm Alekha, Chief People Officers in Vashi. नाम तो सुना होगा. So let us start. Hello everyone, my name is Nutan. I am President for Vashi Integrated Solutions, and today I am a co-host for this Sip and Share episode. This is our third episode and I am excited to be part of this. Yeah, Sameer, you can just introduce Hello, yourself. my name is Sameer Sharif Patel, and I am here as an Assistant Manager Procurement in MRO department. Especially, I am handling the metal category, which is I have a previous experience in previous experience organizations. यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में मेटल जो होता है उसको एक्सप्लोर किया है और वो कैटेगरी मैंने परचेस एंड सेल करने की कोशिश की है. तुम घरता धरता हो हमारे इस कैटेगरी में. Welcome, Sameer. Thank you. Hi everyone, I'm Vishal Lekurwale and I work as a senior procurement executive in the MRO department, and I have been in Vashi for the last 2 years and the journey has been actually amazing. So yeah, and I look thank you. And I look after the power transmission categories. So, Vishal, tell us what excites you to be part of MRO aggregation department. So since start I had a knack of to know different kinds of thing every day and to face challenges. So when I joined MRO, I had no clue what MRO is, and me being a fresher, I was like, let's see what happens. And as I started learning more and more in the categories, the tasks, and everything, and in the supply chain. So it got me very curious to know different things like how this works, what this is, what that material is, and everything. That got me very curious, and how the system is, and how a big organization works and deals with. It got me very curious. So that was my main excitement to work in here, and I get to face new challenges every day. There is some other thing happening, like there is this issue, there is that, the customer needs this thing or that. So every day I have to see or face something new. So yeah, that excites me the most. Excites you the most, or that, like, you being a dynamic person, he's the most dynamic person of our team. One of the most enthusiastic fresher that we have. Now that it's been 2 years, I think. Yeah, but it's excitement plus the nervousness, and it gives you some kind of a adrenaline rush to face and do something new every day. Nutan, I would add, for this type of position, you need a person like Yeah, this. correct, absolutely. This is the strength, which he's an enthu, and that is what we need. Sameer, why would you add something on this? Yes, जब मैंने वाशी ज्वाइन किया था एज अ मैनेजर, मेरा फर्स्ट पोस्ट था ये. पहले भी मुझे कोई टीम रिपोर्ट करती थी जो बहुत बड़ी थी, बट वहाँ पे जो मैनेजर स्किल था और यहाँ पे जो मैनेजर स्किल है मैंने उसको अच्छे से डेवलप किया है. यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हुए हैं वो मैंने पहले कभी फेस नहीं किए थे. और जो वाशी की प्रोसेस है इससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने एक प्रोसेस में काम किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो मुझे फ्यूचर में बहुत काम आएगी कि ये प्रोसेस से चलना इट्स अ बेटर. जो मैं पहले करता था इट्स ऑल्सो इन अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बट वहाँ पे जो प्रोसेस थी और यहाँ पे जो प्रोसेस थी उसमें बहुत डिफरेंट है. तो मेरे लिए सबसे बेटर पॉइंट ये है कि मैंने जो कोलैबोरेशन किया है एज आई एम एमआरओ टीम, बट मेरा बाकी के ब्रांड्स और बाकी के सेगमेंट्स के साथ में जो कनेक्शन है वो कुछ अलग डिफरेंट है. तो वो मुझे एक्साइट करते हैं कि समीर यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, इसको और करो, हमें कोटेशन दो, हमें परचेस ऑर्डर लेना है. तो वो मुझे एक्साइट करते हैं कि हाँ समीर तू ये कर सकता है, ये तू कर. ऐसा बोल के वो मेरे को मतलब प्रपोज करते हैं कि हाँ तू आगे बढ़ सकता है, तू कर ये. लेकिन अगर अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना समीर, हम लर्न ही नहीं करते. तो मैं हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, एंड वी एंड अप हर लर्निंग बार समथिंग. जो प्रॉब्लम्स आई है ना, तो मुझे हर कोई डिपार्टमेंट के पर्सन ने सपोर्ट किया है, मेरे मैनेजर ने सपोर्ट किया है, उनके सुपीरियर ने सपोर्ट किया है. तो ऐसे मैं आगे जा रहा हूँ और वाशी की जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी है और वो आगे चलती रहेगी. Tell me one thing. You have built this entire category. तुमने पूरा टीम खुद खड़ा किया. How was your experience of building this complete team? And ये पूरा टीम हायरिंग का, टीम को सिखाने का, आज इस जगह पर पहुंचने का, you are the owner of this category, but
how is your experience of building this complete team under you in Vashi? जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सिंगल हैंडेडली था. अभी अभी ऐसा है कि मेरे पास तीन लोगों की टीम है जो मैंने प्रीवियस 6 मंथ्स में हायर की है. पर्सन्स आ गए, मुझे अच्छे लगे, मैंने हायर कर लिया, और जो उनको सिखाने का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है, और उन्होंने जो कैचअप किया है वो मेरे लिए सबसे बेटर पॉइंट है. बिकॉज उन्होंने जो लर्निंग किया ना वो एकदम फास्ट किया है, तो मुझे बहुत कम टाइम लगा कि वो कैटेगरी वो लोग हैंडल कर सके, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया एट एनी टाइम, एट एनी मतलब कभी भी कोई भी टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और हमेशा अभी भी करते हैं सपोर्ट, और वो करते रहेंगे. बहुत मतलब अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे अभी तक की सबसे अच्छी टीम मिली है बहुत शॉर्ट टाइम में. तो उन्होंने मेरे ऊपर आने का एक ही पॉइंट है कि मेरी टीम है, अदरवाइज आई एम नथिंग. Wow, that's a great statement. Huh? So Vishal, join करने के पहले what were some of the stereotypes, prerequisites in your mind, और join करने के बाद what culture did you find? What is the culture which you feel is the work culture in Vashi? Okay, so as me being a fresher, सबका stereotype होता है like because of social media कि ऑफिसेज में ऐसे होते हैं, स्ट्रिक्ट बॉसेस, डेली मीटिंग्स, 9 to 6 फॉलो नहीं होता है, ओवर टाइम कर रहे हैं लोग, एंड एवरी. तो जनरली मी बीइंग अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में भी वही थे. आई हैड दो सेम थॉट्स ऑन माय माइंड. So but when I joined, I started learning, and I thought like people would be very strict, you have to behave like in certain way, and you can't talk to them like that. But when I joined Vashi, I started learning, and my manager taught me, and not just my manager. There are other managers who also taught me, and they didn't hesitate. So that was a big cultural shock. Like wow, people here are very helpful, and even if I have any kind of doubt not related to even my category, they would explain to me like I am in their own team. And here there is no very kind of a solid boundaries between a manager and an employee. They just act like your friends. I wouldn't say just exactly like friends, but they act like it, and they make you feel less of a workplace and more of a good office culture. So that was a big stereotype cultural difference for me. And yeah, also people are ready to help you. And not even just my segment, even other segment. Now, even if I call Sameer sir or any other manager at any time, they will, if I have any doubts, they will be there to help me. And be just doubts or any other queries, they are there to help me. That was the biggest cultural shock. Vishal, you are from which college? It just makes me curious. So, like, I am from, my college was in Pune. It is called MMCOE. So, I have done my engineering from Pune. Okay, you're a electrical engineer. No, a mechanical engineer. Yeah, so that was also a big stereotype, like what kind of task I would be given as a mechanical engineer. Yeah. But the thing which I have been given, it has been a very great, and I get to use my knowledge which I learned. जो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, टेक्स्ट बुक तक ही ठीक था, but now मैं जब यहाँ देखता हूँ कि ये मैंने सीखा था, so that gives me a more of a excitement, like the earlier question you asked. So it is very helpful for me as well. So that keeps me in the loop. So what were some of the best moments in MRO? Yeah. You can share about that. My best moments, okay. So वो तो बहुत बड़ी list है, but still I would like. So starting. Nutan can list them, because she's been a complete she leadership for also- MRO. But I want your inputs. Like Okay, what you so feel. like since joining, like I have known like you have to get orders. So for now, I was like once I started 1 month down, I was just doing my thing, and मुझे कोई order नहीं आती थी. So I was very curious कि मुझे कब आएगी पहली ऑर्डर. तो मैं ऐसे सोचता था, My first order. हाँ मैं ऐसे क्यों, मेरे से कुछ गलती हो रहा है, what am I doing wrong? So जब फर्स्ट ऑर्डर आई, it was a very small order, but it gave me a sense of accomplishment. तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने आगे ग्रो करते गया, जो वैल्यू बढ़ती गई, तो उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगा, एंड पर्सनल टारगेट रीच हुआ मेरा कि मेरे मैंने ये वैल्यू रीच कर रहा हूँ, एंड नाउ आई कैन से आई एम मैचिंग लाइक सम बिग ऑर्डर्स व्हिच गिव्स मी अ वेरी गुड अकम्प्लिशमेंट, एंड that was my one of the biggest achievement, and as of a team. So like last year we as a MRO, it was the first achievement we did when it was the first time जब हमने वो हमने टच किया था, that was like a team accomplishment. So let's say cheers to MRO team. Sure, cheers to that. Cheers to MRO. Cheers. So that was a big accomplishment, and as of today we have done 5 CR. Great. I know these numbers won't matter to the people. Once they join, they will know what's the value of it. It's a greater. Yes, and when they see the journey,
So they will understand the value. So this has also been a new latest accomplishment, I can say. And I will add here, the MRO team I have seen, in Nutan's team, you celebrate small victories. Yeah. And that is the Yes. best part. Yes. So when you small, even the victory is small, that gives a feeling of job satisfaction and accomplishment. Correct. Yes. Samir, you would like to add some Yes, best comments, or maybe Nutan can जैसे add. स्टार्ट हुआ था, जैसे सब लोग बोल रहे थे एज एमआरओ एक छोटा सा था मेरे लिए। एमआरओ न्यू है बिकॉज मैं ट्रेडिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट एमआरओ के बारे में एम भी नहीं मालूम था मुझे। अभी तो मालूम हो गया। अभी मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया कि एमआरओ होता क्या है। जब आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, यार ये एमआरओ क्या है मुझे समझ में नहीं आया। डिफरेंट ब्रांड्स देखे, डिफरेंट कैटेगरीज देखी, तो मतलब ये भी होता है। अरे यार मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मुझे इतना नहीं मालूम है। मैंने भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, बट वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो यू आर नथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। तो जो टेक्निकल नॉलेज, जैसे विशाल ने बताया कि भाई मैंने बुक्स में ये पढ़ा है, अभी मैं ये करता हूँ आगे, तो वो नहीं है। होता है जो बुक्स में भी करते हैं, और जो एक्चुअल सोशल कमर्शियल लाइफ होती है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। मुझे तो जीएसटी के बारे में भी बहुत कम मालूम था, मैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में भी सीखा हूँ। एज अ मैं भी पहले भी मैं प्रोक्योरमेंट इंजीनियर था प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, बट आई एम इन दैट एक्सपोर्ट कैटेगरी। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते कि कैसे चलता है, क्या होता है डिपार्टमेंट में। अगर कोई मोमेंट बोला जाए वाशी में ना, तो मुझे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज ना स्मॉल अचीवमेंट्स जो होती है ना, वो आप सेलिब्रेट करोगे तो टीम भी ना एक्साइटेड होती है कि भाई हाँ, ये छोटी छोटी बातों में भी ना एक्साइटेड हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम पार्टी कब करेंगे। हमारे दिमाग में वही होता है। एज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, समीर सर कुछ करते हैं ना तो वो एकदम हटके ही करते हैं, जैसे टीम बोलती है। तो मैं तो उसको वैसे नहीं मानता हूँ, बट टीम बोलती है। तो बाकी मुझे तो अच्छा लगता है। अभी जैसे वाशी में कल्चरल एक्टिविटीज होती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब लोग बोलते हैं यार तू दिखावा करता है, मतलब मैं दिखावा नहीं करता, मेरे को अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है, फेम मिलेगा तो आगे बढ़ोगे, काम होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं हो फिर। क्योंकि जब तक आप आपकी क्वालिटीज को दिखाओगे नहीं, तब तक कोई उसको देखेगा नहीं, कोई तराशेगा नहीं। तो यही है, मैंने वाशी में डांस में भी पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया। तो टैलेंट शो भी है वाशी में, एंड वी हैव टैलेंटेड टैलेंट्स। तो कैसे मुझे भी एक्साइटेड हो रहा है, मैं दूसरे को भी बोलता हूँ कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो इसमें। इससे क्या होगा कि थोड़ा अपने काम से टाइम निकाल के ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, तो तुम और इंथुजियास्टिकली काम कर सकते हो। अदरवाइज तो काम तो रोज करना है, रोज 9 to 6 जॉब करनी है, ओवर टाइम करना पड़ता है जब बॉस बोलता है तो, जो मैं करता भी हूँ। और सुबह उठ के वी शुड फील कि हमको ऑफिस जाना है। हाँ, सम मोटिवेशन शुड बी देयर। एंड समीर सर का एक बात है, जब भी उनका कोई पर्सनल मतलब ये अचीवमेंट आता है ना, वो ही गिव्स एवरीवन अ ट्रीट विदाउट पे। वेरी गुड, प्लीज ट्रांसफर मी टू एमआर। एंड फन फैक्ट, मेरा और समीर सर का जॉइनिंग डेट सेम था वाशी का। सो वी वर सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस रूम, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। आई हैड नो आइडिया हु ही इज एंड सेम, तो बात कर रहे थे। फिर बाद में जब नूतन मैम ने इंट्रोड्यूस किया, तब मुझे रियलाइज ओके ही इज माय मैनेजर। तो वो डिफरेंस मुझे फील ही नहीं हुआ। अभी भी वैसा ही है कि आई स्टिल डोंट फील लाइक ही इज अ मैनेजर। लाइक वो ऐसा बाउंड्रीज ही आने नहीं देते, एंड वो नेचर ही ऐसा है सब लोग का। नहीं, और काम करने का मजा कभी आता हाँ, है। लेट मी टेल यू, व्हेन देयर आर नो मैनेजर ना रहे, मैनेजर दोस्त की तरह रहे ना, तो काम और अच्छे से होता है। एंड इट कम्स फ्रॉम नूतन। आई थिंक नूतन भी इतना अच्छे से जब वर्ड्स तक होती है इनके आप साथ। रिलेशन नहीं बनाओगे सामने वाले से दोस्ती का ना, तब तक वो काम भी नहीं होगा। तो अगर आप मैनेजर की तरह रहोगे, आप भाई 2 दिन हो गया ये काम क्यों नहीं हुआ, नहीं अरे सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, अगर वो दोस्त के हिसाब से बोलोगे ना, तो वो काम आपको 1 घंटे में करके ऐसा। हमारा MRO is not maintenance repair operations. For Samir, it is metal repair operations. Strongest M of MRO. मेरे लिए एम तो मेटल ही है, मुझे वही समझ आया। Yes, so thank you very much for your Thank time, you so much. Vishal Thank you and for Samir. having Thank you, ma'am. Yes. Thank you. So we'll meet again for the next episode. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you.